गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सब लोग मज़े से हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिवाइज and memorize the concept. I have discussed about hyperconjugation in carbocation, carbon free radicals and alkene. Alkene में how to possible hyperconjugation I have discussed that. Now stability of alkene. We are going to start stability of alkene. So first there are few rules to define the stability of alkene. Okay, so recall the all rules which I have discussed and new rules. Okay, so guys keep watch the video till end. मजे में रहो, लाइक में कुछ नहीं है, सब चलता रहेगा. Always be motivated. Okay, always be positive towards your study. हमेशा अपनी स्टडी की ओर पॉजिटिव रहो. Don't go negative. Okay, there are students which are going to negative in the GOC. GOC में बोल रहे हैं कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है. GOC is important point for the general point of the organic chemistry understanding. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो आपको GOC वगैरह रिएक्शन मैकेनिज्म ओवरऑल आना चाहिए. ओके, सो गाइज कीप वाचिंग द वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बी मोटिवेटेड. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. Stability of alkene. So there are few rules. Rule number 1, conjugated alkene. Conjugated alkene is more stable than non-conjugated alkene. This is the first rule. Okay, example, this is the conjugated alkene. Okay, and this is the non-conjugated alkene. Okay, this is the conjugated alkene and this is the non-conjugated alkene. So conjugated alkene is more stable than non-conjugated alkene. So again second rule क्या हो जाएगा? In non-conjugated alkene, in non-conjugated alkene, okay, stability of alkene is stability of alkene directly proportional to number of alpha H. Okay, this is the directly proportional to number of alpha H. More number of alpha H, more is the stability. Okay, इसको समझते हैं. एग्जाम्पल, डबल बॉन्डेड. ठीक है, एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर alkenes and non-conjugated alkene. So second law, stability of alkene is directly proportional to alpha H. How many alpha H are present? In first, in case of this, here is hydrogen. Okay, here is hydrogen, but here is CH3. So again, how many alpha H are present? Here alpha H are 6 alpha H. Again for this condition, how many alpha H are present? यहाँ पे CH3 and H. So this H not be counted. Okay, double bond, then अटैच कार्बन पे जो अल्फा H होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा H की वैल्यू 9. ओके, सो
second is more stable than first. This is the second law of to check the stability of alkene. Again, third rule, if the alpha H are same, then alkene, then unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene is more stable than symmetrical alkene. Okay, so with example I want to discuss this. Example, this is the alkene and this is also alkene. Here alpha H are same, both are unsymmetrical. First check the कॉन्जुगेटेड है, नो कॉन्जुगेटेड. अगेन ये तुम्हारा सिमेट्रिकल है, नहीं. अल्फा एच कितना है यहाँ पे? अल्फा एच दोनों में सेम है. यहाँ पर भी अल्फा एच कितना है? 6. अल्फा एच कितना है? 6. नाउ अगेन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. देखो सिमेट्रिकल क्या होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर इक्वल होना चाहिए. तो डबल बॉन्ड के दोनों ओर यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? CH3 मेंटेन है. यहाँ पे देखो CH3 है और नीचे हाइड्रोजन है. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या? CH3 है. ओके, सो क्या है? दिस इज द सिमेट्रिकल फॉर्म एंड दिस इज द अनसिमेट्रिकल फॉर्म. डबल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर CH3 होना चाहिए. यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होना चाहिए था. तो ये तुम्हारा सिमेट्रिकल हो जाएगा. दिस इज द सिमेट्रिकल and this is the unsymmetrical. देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कि unsymmetrical is more stable than symmetrical. So this is the order of the stability of alkene for that example. So come to the next point, next level. तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉन्जुगेटेड, then alpha H, then symmetrical and unsymmetrical. Again the fourth law. Okay, if symmetrical alkanes H, then trans form is more stable than cis form. In symmetrical alkane trans form is more stable than cis form. देखो अच्छा ट्रांस क्या होता है और सिस क्या होता है, ठीक है. तो कुछ दिस इज द नोन एज, ये तुम्हारा जो है दिस इज नोन एज सिस फॉर्म. ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड, ठीक है, डबल बॉन्ड के अपवर्ड इस साइड दोनों बराबर है. ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म देखो, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ये एल्कीन का ट्रांसफॉर्म है, ये क्या सिस फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, देखो दोनों में अल्फा एच की वैल्यू कितना है? सेम है. अल्फा एच की वैल्यू कितनी है? सेम है. ठीक है, दोनों ही क्या है बताइए? सिमेट्रिकल है.
दोनों में सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या होता है, ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। थोड़ा समझ लो, सिस फॉर्म होती क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड सारा कुछ इक्वल चले। मतलब अगर डबल बॉन्ड के ऊपर साइड में, दोनों साइड में CH3 CH3 और CH3 रहेगा, यहाँ पे क्या ऊपर CH3 नीचे, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, इसमें से हमने X Y Z और P ये हमने मान लिया। थोड़ा समझ लो इसको। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, अगेन X इक्वल टू वाई, X इक्वल टू वाई एंड P इक्वल टू जेड, क्या बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। अगेन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या बनाता है कि X इक्वल टू जेड, ओके, एंड P इक्वल टू वाई, क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, ठीक है। X और Z इक्वल है, P और Y इक्वल है, देन फॉर्म विल बी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिकल में ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। इस पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे कदमों से भागते हुए। तो क्वेश्चन इज दैट, okay guys, there are two questions. Define the stability order. So first of all, rule for alkene stability order in hyperconjugation I have discussed before some time. So first rule is that find out the conjugated and non conjugated. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन की कोई वैल्यू नहीं है। So how to recognize, check out the alpha H value, alpha H value। तो यहाँ पे alpha H कितना आ गया, यहाँ पे alpha H हो गया 3 कितना हो जाएगा, इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3, कुल मिला के 12 आ गया। अगेन alpha H यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे alpha H की वैल्यू 6 आ गई। In this case alpha H value becomes 6, in this case alpha H value becomes 9, in this case alpha H कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ओके। इसमें नो अल्फा H, यहाँ पे नो अल्फा H, तो इसमें अल्फा H नहीं है। अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर को मेंटेन कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, देखो यहाँ पे क्या कराएंगे, मेंटेन फर्स्ट अल्फा H की वैल्यू मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट चेक आउट द कॉन्जुगेशन। तो इन किसी में भी कॉन्जुगेशन नहीं है, देयर इज नो कॉन्जुगेशन, ओके। तो क्या हो जाएगा, अल्फा H की वैल्यू मैक्सिमम किस में है, नंबर 1 पे मैक्सिमम है। इसके बाद देखेंगे, अब अल्फा H इन तीनों में सेम है, 2 3 4 में अल्फा H वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अल्फा H जब सेम है तो क्या चेक करेंगे बताइए, चेक करेंगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। नहीं इसमें अल्फा H ज़्यादा है, 1 मिनट, तो ये 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो 2 3 4 में अल्फा H की वैल्यू 6 सेम है, तो चेक आउट द वैल्यू, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो सेकंड आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब दोनों सिमेट्रिकल हैं, 2 और 3 और 4 क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इसमें से ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, तो 4
देन 3, इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, अब तुम्हारा जाएगा 6 नंबर जाएगा। क्यों? यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो आ जाएगा 6, इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 7। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें इन दोनों में अल्फा एच की वैल्यू के बेस पे इनको डिफाइन किया गया है। इनमें क्या है, ये तुम्हारा सिमेट्रिकल है, ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है। पहला अनसिमेट्रिकल है 2, 4 और 3 क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रांस है, और ये तुम्हारा क्या है, सीस है। ठीक है, इसमें अल्फा एच की वैल्यू क्या है, केवल 4 है, लास्ट में आ जाएगा। दिस इज द योर ऑर्डर। तो बाय रीजन यू हैव टू स्टडी दैट कंपाउंड, यू कांट लर्न दैट कंपाउंड। तो फर्स्ट आप अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, देन गो टू द क्वेश्चन। तो आई हैव डिस्कस्ड द रूल। ओके, रूल को लगाएंगे। फर्स्ट चेक आउट द, क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक आउट द कॉन्जुगेशन, अगेन अल्फा एच, इन लास्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सीस और ट्रांस में ट्रांस रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके सो गाइस, इन सेकंड क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द, क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेशन। देयर इज नो कॉन्जुगेशन, ओके, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है कहीं पे, डबल बॉन्ड है नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड 2 टाइम्स होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ पे सिंगल टाइम्स है डबल बॉन्ड। ओके, सो फर्स्ट रूल फेल हो गया। सेकेंड रूल क्या था तुम्हारा, बताइए। सेकेंड रूल बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द अल्फा एच। तो अल्फा एच यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, तो वो अल्फा एच कैसे काउंट करेंगे, इसमें थोड़ा समझ लो। यहाँ पे 2 एच हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 एच हैं, कार्बन से 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड अल्फा एच। तो यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। सो विल बी 4। यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू बताइए। इस कार्बन से अटैच तो 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 4 3 7। यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू कितनी हो गई, बताइए, 7 to 9 हो गई। ओके, समझ में है ना, निकाल सकते हो अल्फा एच। यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू, यहाँ पे सिंगल एच रहेगा और इस कार्बन पे डबल एच रहेगा, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा एच बिकम्स 3। अगेन यहाँ पे सिंगल एच रहेगा, यहाँ पर भी सिंगल एच रहेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, जो हम बॉन्ड बना रहे हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अल्फा एच विल बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर मेंटेन विद द रिस्पेक्ट ऑफ अल्फा एच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा एच, किसी भी कंपाउंड में अल्फा एच की वैल्यू सेम नहीं है, सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच यू कैन डिसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आ जाएगा, 3rd, इसके बाद 7 सेकेंड, इसके बाद 1st, इसके बाद 4, देन 5। किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द अल्फा एच। So guys, again new topic, Bredet rule. According to that rule, in case of bicyclic compound, I have discussed bicyclic compound in nomenclature. Okay, bicyclic compound discuss किए थे। Double bond cannot be formed at bridge head position bicyclic ring unless the ring is enlarged enough.
सो अगेन देखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज द बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इन दिस पोजिशन कार्बोकटायन इज एग्जिस्ट, यहाँ पे कार्बोकटायन एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगेन दिस हाइड्रोजन कैन बी, इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो अब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, देयर आर टू वेज टू रिमूव दैट कार्बोकटायन। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसको हमने रिमूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। देयर आर टू वेज टू रिमूव हाइड्रोजन। इसको अगर हमने रिमूव किया तो क्या बनेगा, चलिए इसको बना लेते हैं। इसको रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, और इसको रिमूव करेंगे तो ये बनेगा। देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे कर दिया हमने। देखो इसको रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस मिला के डबल बॉन्ड बनेगा। इसको रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। अगर 1 नंबर रिमूव करेंगे तो ये बनेगा। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड हो रहे हैं ना। इस पोजीशन पे देखो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो रहे हैं ना। तो 4 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजीशन। ये तुम्हारी कौन सी पोजीशन है, दिस इज नोन एज ब्रिज हेड पोजीशन। तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड डज नॉट स्टेबल, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड। देखो H है, यहाँ पे H प्लस से अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस में इलेक्ट्रॉन लेके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे अब देखो H3O प्लस क्या हो जाएगा, ये बनेगा H2O प्लस। ठीक है, ये अनस्टेबल रहेगा तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है H और H। ठीक है, अब देखो इस कार्बोकटायन को सेटिस्फाइड करने के लिए 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि यहाँ से जो H है इसको रिमूव कर दें, दूसरा क्या है यहाँ से जो H है इसको रिमूव कर दें। तो यहाँ से H रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बॉन्ड हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 4 बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। थोड़ा सा बाइसाइक्लिक कंपाउंड ये सब तुमको पढ़ाया था ना, स्पैरो, ये सब कंपाउंड याद है कि नहीं। सो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके गाइज, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा था। अगेन इन एल्कीन, नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन रिंग। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 अल्फा H। कितने अल्फा H हैं बताइए। इस डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे कितने अल्फा H हैं, 3 अल्फा H। तो यहाँ पे 3 अल्फा H, किसी एक अल्फा H को ब्रेक करा दो, तो हमने इस अल्फा H को ब्रेक करा दिया। ठीक है, ये हवा में लटक रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अगेन ओके, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक कराओ तो इसका बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, 1 मिनट, और ये भी ब्रेक करा दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करा दो तो क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस चार्ज। ठीक है, इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों में एक बॉन्ड बनेगा ना। तो यहाँ से देखो कार्बन यहाँ पे H प्लस हवा में लटकता हुआ, और ये छोटे छोटे कदमों से डबल बॉन्ड बनाते हुए ये आ गया माइनस। ओके, दिस इज द फर्स्ट
ये हो जाएगा सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा। इसका थर्ड वेव क्या बनेगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगेन वेव क्या बनेगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में पॉइंट्स बन गए, अगेन कार्बन पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे H प्लस, और ये अनडीड, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, और दिस वन इज द, ये हमने बॉन्ड बना दिया, ओके। सो दिस इज द 5, ओके। ये नहीं, एक्चुअली बॉन्ड नहीं है ना, ये बॉन्ड नहीं था ना, इस बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एनी प्रॉब्लम? सो कम टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नाउ दीज आर द, क्या हो जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हैं, ओके। कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, एक अल्फा एच पे कितने बनने हैं बताइए, एक अल्फा एच पे कितने बनने हैं, उस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। नाउ कम टू द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बना लेंगे, देखो इस बार यहाँ का ब्रेक किया, अगले बार यहाँ ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक करेंगे, ओके। तो ब्रेकिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी सिग्मा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर भी सिग्मा पॉजिटिव आ जाएगा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे सिंगल डबल दोनों होगा ना, अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको ऐसे बना लो, गोला, तुम लोग बड़ा गोला खाते होगे ना, वही आइस वाला गोला, गोला बना दिया हमने, तो दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। नाउ तो हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस, लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन टेक्स प्लेस at ortho and para position, not meta position, ओके। अर्थो और पैरा पोजिशन पे टेक करेगा, ये मेटा लिखा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक कराया, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ आया, यहाँ से आने के बाद देखो यहाँ से ब्रेक कराया कार्बोकेटाइन, ये 1 से 3, 3 से 5, 7, फिर से वहीं पे, समझ में आया क्या, 1 3 5, देखो 1 3 यहाँ पे आया मेन, इसके बाद 3 पे आया, इसके बाद कहाँ गया, ये आ गया 5 पे आ गया, इसके बाद फिर से अपनी पोजीशन पे रिटेन हो गया, तो ये बनेगा। तो इस प्रकार ये इसने ये पोजीशन तो आई क्या, माइनस चार्ज यहाँ आया, माइनस चार्ज देखो यहाँ नहीं आया ना, तो मेटा पोजीशन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थो और पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम इफेक्ट
ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन रिंग। ओके,